Hello everyone. So today we will do revision for the topic that is abnormal uterine action part 1, right? So I have divided this particular topic in two parts. Half of the portion will be covered in this lecture and the next part will be uploaded soon in the next video, right? So let's start with the revision. First of all comes whenever it comes to abnormal uterine action, we are going to classify it in like over efficient uterine action और inefficient uterine action. ठीक है, over efficient का मतलब क्या है कि ज़्यादा मतलब hyperactive uterus है, right? And inefficient का मतलब क्या है, like if there is hypertonic inertia or if there is hypertonic inertia. So that we are going to do first. So first of all comes in the classification is that is over efficient uterine action, right? Over efficient uterine action में आपका जो फर्स्ट चीज़ आएगी दैट विल बी प्रेसिपिटेट लेबर. सो प्रेसिपिटेट लेबर अभी हम इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे वन आफ्टर अनदर, राइट? सो प्रेसिपिटेट लेबर जो है दैट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, दैट ऑब्स्ट्रक्शन अदरवाइज कैन बी ड्यू टू पैसेंजर, पैसेज और पावर. ठीक है, लेकिन प्रेसिपिटेट लेबर कब होती है? व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन. देन नेक्स्ट ओवर एफिशिएंट यूट्राइन एक्शन में सेकंड आपका आता है दैट इज एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन. ये जो एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन है दैट ऑलवेज अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, राइट? So there is a difference between precipitate labor and excessive contraction and retraction. Then after over efficient uterine action next comes the inefficient uterine action. ठीक है, inefficient uterine action में there will be three classifications, like there will be there can be hypotonic inertia, there can be hypotonic inertia. ठीक है, और अगर हम hypertonic inertia की बात करेंगे तो there can be colicky uterus or there can be hyperactive lower uterine segment, right? Then next comes in inefficient uterine action is that is constriction ring, and constriction ring का हम दूसरा नाम क्या देते हैं? contraction ring, right? Then next आ जाता है आपका थर्ड क्लासिफिकेशन. फर्स्ट क्या था? ओवर एफिशिएंट यूट्राइन एक्शन, सेकंड वन इज inefficient uterine action and third one is cervical dystocia. ठीक है, so let's start with over efficient uterine action first, precipitate labor. तो precipitate labor से हम स्टार्ट करेंगे, right? So as we are doing the revision for these particular topics, so you might have an idea that what actually is precipitate labor. So here goes the definition for the same. Any labor that lasts for less than 3 hours. ठीक है, labor जो है वो 3 hours में अगर complete हो जाता है labor का process, so that will be termed as precipitate labor. So suppose the woman is experiencing contractions at 10 a.m. and by 1 p.m. ठीक है, जो बेबी है प्लस जो प्लेसेंटा है दे हैव बीन डिलीवर्ड. ठीक है, तो अगर 3 आवर्स से भी कम का टाइम लगता है लेबर के प्रोसेस को तो हम उसे क्या काउंट करेंगे? प्रेसिपिटेट लेबर. Then next comes etiology. So etiology of precipitate labor. So it is more common in multiparas when there are multipara. Multipara कौन है? Those who have given मल्टीपल बर्थ्स. ठीक है, मतलब मल्टीपल बर्थ्स का मतलब क्या है? जो पहले भी डिलीवर कर चुकी है. सो जो प्रेसिपिटेट लेबर है दैट इज मोर कॉमन इन मल्टीपैरा रेदर देन इन प्राइमरी पैरा. ठीक है, सो मल्टीपैरा के अंदर जो कॉजेज हो सकते हैं दैट कैन बी स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, दैट द वुमेन इज एक्सपीरियंसिंग स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस. देन स्मॉल साइज्ड बेबी कैन बी द अनदर कॉज. देन रूमी पेल्विस. ठीक है, रूमी पेल्विस का मतलब क्या है? देयर इज इनफ स्पेस इन द पेल्विस. देन मिनिमल सॉफ्ट टिश्यू रेजिस्टेंस. ठीक है, मतलब जो सॉफ्ट टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं मसल्स पेल्विक फ्लोर मसल्स के साथ, ठीक है, उनकी जो रेजिस्टेंस है दैट इज वेरी मच लेस, जिसकी वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है और जो लेबर का प्रोसेस है वो जल्दी ख़त्म हो रहा है, राइट? सो दीज कैन बी द एटियोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर प्रेसिपिटेट लेबर. देन नेक्स्ट कम्स कॉम्प्लिकेशन. सो व्हाट कॉम्प्लिकेशंस मदर कैन फेस, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है? लेबर जैसे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई है सपोज 10 o'clock और 1 o'clock पे सब कुछ डिलीवर भी हो गया. ठीक है, तो उसमें क्या है? एकदम से बहुत फास्टली प्रोसेस हो रहा है सब कुछ, राइट? तो उससे क्या है? लेस्ट्रेशन के चांसेस है, मदर को जो है पेरिनियल इंजरीज भी हो सकती हैं. सो मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस विल बी लाइक लेस्ट्रेशन ऑफ द सर्विक्स, वेजाइना एंड द पेरिनियम. देन मदर कैन एक्सपीरियंस शॉक. शॉक की होगा ड्यू टू एक्सेसिव हैमरेज. सो हाइपोवोलेमिक शॉक मदर जो है उसको हो सकता है. देन इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस कैन बी देयर. ठीक है, राइट? देन नेक्स्ट कैन बी पोस्टपार्टम हैमरेज, राइट? एंड
like there will be no time for retraction. As we all know what happen in the process of labor, there will be uterine contractions and retractions. ठीक है, retraction क्या होता है? Permanent shortening of the muscle fibers. So in this case there are less chances for or less time for retraction. तो contraction ज़्यादा होंगी, retractions जो है वो कम होंगी. So that will lead to increase lacerations. Then there can be sepsis. ठीक है, sepsis can be due to lacerations and even it can be due to inappropriate surroundings. ठीक है, मतलब suppose अगर हमने aseptic techniques जो है वो use नहीं करी हैं, so that can lead to sepsis in the mother. Then comes fetal complications. What fetal complications can arise due to precipitate labor? सबसे पहले आपका आता है that is intracranial hemorrhage due to sudden compression and decompression of the head. ठीक है, so there will be intracranial hemorrhage. Then fetal asphyxia will be there. What is fetal asphyxia? Fetal asphyxia में क्या होता है? जो at the time of birth जो baby होगा he or she won't be able to establish normal breathing pattern, right? So fetal asphyxia will be there. Then strong frequent uterine contraction reducing the placental perfusion. Fetal asphyxia किस वजह से होगा? जो placental perfusion होगी वो कम हो जाएगी. क्यों कम हो जाएगी? Due to excessive uterine contraction. Then next fetal complications आती हैं lack of immediate resuscitation. ठीक है, suppose that particular hospital where the delivery is going on, ठीक है, precipitate labor वाला केस जो है जहाँ पे डील किया जा रहा है और वहाँ पे स्टाफ जो है suppose they are not skillful enough, right? They are lacking in birth skills. ठीक है, so that can lead to this lack of immediate resuscitation measures. मतलब अगर वो efficient नहीं है, proficient नहीं है अपने skills के अंदर, तो वो immediately resuscitation measures जो है वो apply नहीं कर पाएंगे, या वहाँ पे अगर suppose instruments ना हो और resuscitation का arrangement ना किया गया हो पहले से. ठीक है, so that can cause fetal asphyxia. Then there are chances of avulsion of the umbilical cord. एंड लास्ट कम्स फीटल इंजरी ड्यू टू फॉलिंग डाउन. ठीक है, हो सकता है कि जो बेबी होगा वो बर्थ के टाइम पे फॉल हो जाए, नीचे गिर जाए. ठीक है, जिसकी वजह से देख आर इंक्रीज चांसेस ऑफ फीटल इंजरी. सो दीज ऑल आर द कॉम्प्लिकेशंस विच आर रिलेटेड टू प्रेसिपिटेट लेबर. ठीक है, इन बोथ मदर एंड फीटस. Then next comes the management. So before delivery, ठीक है, before delivery कैसे manage कर सकते हैं हम? Patient who had previous precipitate labor should be hospitalized before expected date of delivery. ठीक है, क्योंकि ये जो precipitate labor की history है, suppose if the woman has previously also experienced precipitate labor, so there are chances कि next time भी precipitate labor उसको हो सकता है. So उसको expected date of delivery से पहले ही हमने hospitalize करना है, right? Then next है during delivery, how you can manage the case. So inhalation anesthesia, inhalation anesthesia में हम कौन सा इसमें प्रेफर करेंगे? नाइट्रस ऑक्साइड. ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन जो है वो भी दी जाती है, विच इज़ गिवन एट स्लो रेट. ठीक है, एंड विच हेल्प्स इन लाइक स्लोइंग डाउन द कोर्स ऑफ लेबर. ठीक है, तो एनेस्थीसिया के साथ जो लेबर का प्रोसेस होगा दैट विल बी स्लो डाउन. ठीक है, इसलिए हम इनहेलेशन एनेस्थीसिया देंगे और कौन सा यूज़ करेंगे? नाइट्रस ऑक्साइड, एंड अलॉन्ग विद दैट वी आर गोइंग टू गिव ऑक्सीजन. देन वी कैन यूज़ टोकोलिटिक एजेंट्स. सो एज वी ऑल नो टोकोलिटिक एजेंट्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को कम करना, राइट? सो जो मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं जैसे कि रिटोड्रिन है जिसका नाम क्या है? यूटोपार, राइट? सो दैट मे बी इफेक्टिव. देन नेक्स्ट है एपिजियोटमी, क्योंकि इससे इंजरीज के चांसेस है मदर को भी प्लस फीटस को भी. सो वी कैन गो फॉर एपिजियोटमी. ठीक है, टू अवॉइड पेरिनियल लेसरेशंस एंड इंट्राक्रेनियल हैमरेज इन द फीटस, राइट? सो दिस वाज अबाउट द प्रेसिपिटेट लेबर. देन नेक्स्ट कम्स एक्सेसिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन. ठीक है, ये हम किसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं? पॉइंट अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ ओवर एफिशिएंट यूटरस. पहले हमने क्या किया? प्रेसिपिटेट लेबर, एंड द अनदर वन इज एक्सेसिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन. मतलब कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा है और जो रिट्रैक्शन है वो भी ज़्यादा है. सो इसके अंदर आपकी जो पहले आती है सबसे पहले दैट इज फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग. ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा आपका? फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग. So it is a line of demarcation between the upper and lower uterine segment present during normal labor and cannot usually be felt abdominally. ठीक है, रिट्रैक्शन, फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग जो होती है उसमें क्या होता है? जो यूट्रस का अपर सेगमेंट होता है और जो लोअर सेगमेंट होता है, ठीक है, उसके अंदर एक लाइन फॉर्म हो जाती है. लाइन का मतलब क्या है? मतलब एक यू कैन से एक सेपरेशन वॉल बन जाती है. ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेबर. ठीक है, और इस लाइन को या इस सेपरेशन को, ठीक है, हम पर एब्डोमिनली फील नहीं कर सकते हैं, ये याद रखना है. दिस इज अ
मेन डिफरेंस बिटवीन रिट्रैक्शन रिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन रिंग, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग, सो अनदर नेम इज बैंडल्स रिंग, ठीक है। रिट्रैक्शन रिंग का दूसरा नाम क्या होता है? बैंडल्स रिंग, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कमिंग अंडर एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन. Then it is the rising up of retraction ring during obstructed labor due to marked retraction and thickening of the upper uterine segment, while the relatively passive lower segment is markedly stretched and thin to accommodate the fetus. Pathological retraction ring जो है वो क्यों फॉर्म होती है, ठीक है। बेसिकली ये जो है दैट अकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में क्या होगा, ठीक है, रिट्रैक्शन होगी, देयर विल बी रिट्रैक्शन एंड देयर विल बी थिकनिंग ऑफ द अपर यूट्राइन सेगमेंट, ठीक है। जो अपर सेगमेंट होगा वो थिक हो जाएगा, ठीक है, वाइल जो लोअर सेगमेंट है, ठीक है, वो क्या होगा, स्ट्रेच होगा और थिन होगा, ताकि उसके अंदर जो है वो फीटस एंटर कर सके लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर, ठीक है। So the bundle ring is seen and felt abdominally as a transverse groove that may rise to or above the umbilicus. So this bundle ring is seen and felt abdominally as a transverse groove that may rise to or above the umbilicus. ठीक है, so it can be felt abdominally. Then next comes clinical picture. साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे इसके, ठीक है। तो साइन एंड सिम्टम्स के वही आएंगे जो कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के अंदर देखे जाते हैं, ठीक है। ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के अंदर क्या होगा, पेशेंट विल बी एक्सपीरियंसिंग कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस उसके अंदर आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, लेकिन फीटस का डिसेंट इतना अच्छा नहीं हो पाएगा ड्यू टू सम काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन. द ऑब्स्ट्रक्शन कैन बी इधर ड्यू टू द पैसेंजर और ड्यू टू द पेल्विस और ड्यू टू द पेल्विस को हम पैसेज भी बोलते हैं, ठीक है. एंड इवन इट कैन बी ड्यू टू द दिस यू कैन से पावर, ठीक है. पावर इज कॉन्ट्रैक्शंस, सो दैट विल बी देयर. देन द सेम साइन एंड सिम्टम्स आएंगे जो कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के अंदर आते हैं. सो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर शुड बी प्रॉपरली ट्रीटेड, अदरवाइज द थिन लोअर सेगमेंट विल रप्चर, है ना, ये बात ध्यान रखनी है. तो इफ द पेशेंट इज गोइंग इन ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ऐसे हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में जा रहा है, हम उसको क्या करेंगे, पार्टोग्राफ मॉनिटरिंग करेंगे. इसीलिए पार्टोग्राफ मॉनिटरिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है. सो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर जो है उसको हमने टाइमली इन्वेस्टिगेट करना है, डायग्नोज करना है उसका, और उसको प्रॉपरली ट्रीट करना है. क्योंकि अगर हम उसे नहीं इग्नोर कर देंगे, अगर वो अनडायग्नोज चले जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट होगा इट विल कीप ऑन स्ट्रेचिंग एंड गेटिंग थिन्ड, जिसकी वजह से क्या होगा, वो रप्चर हो जाएगा, ठीक है. जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए रबर बैंड का. अगर रबर बैंड को हम खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, एक पॉइंट आता है जब उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो खत्म हो जाती है, ठीक है, स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथ जो है वो खत्म हो जाती है एंड इवेंचुअली जो रबर बैंड होता है वो टूट जाता है. तो सेम वे ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में भी हमने ध्यान देना है, क्योंकि जो लोअर सेगमेंट है वो थिन होता जा रहा है, ठीक है, एंड इवेंचुअली इट विल गेट रप्चर इफ द ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर गेट्स अनडायग्नोज्ड टाइमली, right? So this was about the pathological retraction the ring. Then next comes hypotonic uterine inertia, ठीक है. Hypotonic uterine inertia is coming under the classification that is inefficient uterine action, ठीक है, hypotonic uterine inertia. So what all we are doing is hypotonic uterine inertia में क्या होता है, तो जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती हैं they are infrequent, weak and of short duration, ठीक है. जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगी that will be infrequent, weak and short duration. इनफ्रीक्वेंट का मतलब क्या है, जैसे कि हर 10 मिनट के बाद कॉन्ट्रैक्शन आनी चाहिए, तो इसमें हर 10 मिनट के बाद कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगी, कभी 5 मिनट के बाद आ रही है, कभी 15 मिनट के बाद, कभी 20 मिनट्स के बाद. तो एक प्रॉपर पैटर्न नहीं बनेगा, ठीक है. और जो कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी भी दैट विल बी ऑफ वीक इंटेंसिटी, ठीक है. वीक इंटेंसिटी का मतलब क्या है, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस विल बी देयर, लाइक 5 to 10 सेकेंड्स के लिए कॉन्ट्रैक्शन आएगी और इफ इनफ्रीक्वेंटली आएगी, राइट, एंड दैट विल लास्ट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन. देन इटियोलॉजी है इसकी हाइपोटोनिक यूटराइन इनर्शिया की. नंबर 1 इज अननोन बट द फॉलोइंग फैक्टर्स मे बी इनक्रिमिनेटेड. सो जनरल फैक्टर्स आपके आ जाते हैं इसमें, प्राइमरी ग्रेविटा, पर्टिकुलरली एल्डरली, ठीक है, एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा. सो द वुमेन हु इज ओवर द एज ऑफ 30, ठीक है, और उसने कभी भी अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है या उसने डिलीवर नहीं किया है, तो दैट इज शी इज प्रोन टू हैव दिस हाइपोटोनिक यूट्राइन इनर्शिया. देन एनीमिया इज द अनदर फैक्टर. देन नर्वस एंड इमोशनल आप बोल सकते हो बिहेवियर, ठीक है, जैसे कि एंजाइटी एंड फियर, ठीक है. सो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द पैटर्न ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. इसको हम बोलते हैं साइकी, ठीक है.
Then hormonal, it can be hormonal due to deficient prostaglandins or oxytocin as in induced labor. ठीक है, hypotonic uterine inertia जो है it can be due to deficiency of prostaglandin hormone or due to deficiency of oxytocin hormone. Then improper use of analgesics. ठीक है, सपोज आपने एनाल्जेसिक जो है वो ज़्यादा अमाउंट में पेशेंट को लगा दिया है तो उससे भी पेशेंट को जो है वो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो सुप्रेस होने के चांसेस होते हैं. ठीक है, सो दैट कैन बी द कॉज. Then continuing with the etiology of hypotonic uterus, that is local factors. Local factors में आ जाएगा over distension of the uterus. Over distension of the uterus किस केस में होगा? Like suppose multiple pregnancy है, या आप कह सकते हो hydrocephalus है, या फिर polyhydramnios है. So that will lead to over distension of the uterus that can add to hypotonic uterine inertia. देन डेवलपमेंटल एनॉमलीज ऑफ द यूटर. डेवलपमेंटल एनॉमलीज क्या होंगी? जैसे कि कोई कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है यूट्रस के अंदर, जैसे कि डाइडेल्फस यूट्रस है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, ठीक है, या फिर हाइपोप्लेजिया है यूट्रस का. ठीक है, सो दैट कैन लीड टू दिस कंडीशन. देन मायोमाज ऑफ द यूट्रस इंटरफियरिंग मैकेनिकली विद द कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, इफ देर इज प्रेजेंट ऑफ सम काइंड ऑफ ट्यूमर लाइक मायोमाज है यूट्रस के अंदर. ठीक है, सो दैट कैन लीड टू दिस पर्टिकुलर कंडीशन. देन माल प्रेजेंटेशंस हैं, माल पोजिशंस हैं, सिफेलोपेल्विक डिसप्रपोर्शन है विच अकर्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस ऑल्सो. ठीक है, तो वो सारे इस पर्टिकुलर कंडीशन को अराइज कर सकते हैं. द प्रेजेंटिंग पार्ट इज नॉट फिटिंग इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट लीडिंग टू एब्सेंस ऑफ द रिफ्लेक्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. क्योंकि माल प्रेजेंटेशन होगी या माल पोजिशन होगी तो जो प्रेजेंटिंग पार्ट जो होगा वो अच्छे से फिट नहीं हो पाएगा लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर. ठीक है, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शंस होंगी वो बाईपास हो जाएंगी. ठीक है, वो प्रेजेंटिंग पार्ट को नहीं, मतलब आप बोल सकते हो प्रोजेक्ट करेंगी. ठीक है, सर्विक्स के ऊपर डायरेक्टली. तो जिसकी वजह से ये कंडीशन जो है वो अराइज हो सकती है. द नेक्स्ट फैक्टर इज फुल ब्लैडर एंड रेक्टम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम पेशेंट को कैथेटराइज करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेबर. राइट, सो बिकॉज क्योंकि अगर ब्लैडर फुल होगा या रेक्टम फुल होगा दैट विल लीड टू हाइपरटोनिक यूट्रस. ठीक है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस कम हो जाती हैं. देन टाइप्स ऑफ हाइपोटोनिक यूट्राइन एक्शन. प्राइमरी इनर्शिया हो सकता है और सेकेंडरी इनर्शिया. हाइपोटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है इसको हम इनर्ट यूट्रस भी बोलते हैं. ठीक है, या यूट्राइन इनर्शिया भी बोलते हैं. तो इसकी दो टाइप्स हैं, प्राइमरी इनर्शिया एंड सेकेंडरी इनर्शिया. सो प्राइमरी इनर्शिया में क्या होता है? देयर विल बी वीक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस फ्रॉम द स्टार्ट. ठीक है, शुरू से ही पेशेंट को जो कॉन्ट्रैक्शंस होंगी वो बहुत ही स्लो होंगी. ठीक है, देन नेक्स्ट कम्स सेकेंडरी इनर्शिया. ठीक है, सेकेंडरी इनर्शिया में क्या होगा? पहले तो पेशेंट को अच्छी कॉन्ट्रैक्शंस एक्सपीरियंस करेगा पेशेंट, लेकिन जो प्रोग्रेस लेबर जो होगी वो प्रोग्रेस नहीं हो रही होगी ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से अब यूट्रस जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा और पेशेंट जो है वो हाइपोटोनिक स्टेट में चले जाता है फिर. ठीक है, दैट इज सेकेंडरी इनर्शिया. देन नेक्स्ट कम्स द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ हाइपोटोनिक यूट्राइन एक्शन. सो द लेबर विल बी प्रोलॉन्ग्ड. देन नेक्स्ट, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आर इनफ्रीक्वेंट, वीक एंड ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया था. देन क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इनफ्रीक्वेंट है, वीक हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन की हैं, तो दैट विल लीड टू स्लो डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स. देन कॉन्ट्रैक्शंस इतनी अच्छी नहीं है तो जो ज़्यादातर क्या होता है कि मेम्ब्रेन्स होती हैं वो इंटैक्ट होती हैं, रप्चर नहीं हुई होती. देन द फीटस एंड मदर आर यूजली नॉट अफेक्टेड अपार्ट फ्रॉम द मेटर्नल एंजाइटी ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड लेबर. ठीक है, सो फीटस और मदर पे एज सच इसका कोई इफेक्ट पड़ता नहीं क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बहुत ही स्लो हैं. ठीक है, और इसमें मदर को लेकिन एंजाइटी ज़रूर हो सकती है क्योंकि जो लेबर का प्रोसेस होगा दैट विल बी प्रोलॉन्ग्ड. राइट, उसकी वजह से मदर को एंजाइटी और फियर हो सकता है. देन मोर ससेप्टेबिलिटी फॉर रिटेन प्लेसेंटा. रिटेन प्लेसेंटा क्या होता है? दैट इज थर्ड कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. सो इसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. देन पोस्टपार्टम हैमरेज के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं ड्यू टू परसिस्टेंट इनर्शिया. राइट, देन टोकोग्राफी. ठीक है, अगर हम पेशेंट का कार्डियोटोकोग्राफी करते हैं, CTG करेंगे, तो दैट विल शो इनफ्रीक्वेंट वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस विद लो एम्पलीट्यूड. ठीक है, तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्शंस की वेव्स आएंगी दैट विल बी इनफ्रीक्वेंट. ठीक है, दिखेंगी उसके ऊपर जो ग्राफ आएगा कि वो इनफ्रीक्वेंट है और जो उसकी इंटेंसिटी है वो भी कम है. देन कम्स द मैनेजमेंट फॉर हाइपोटोनिक यूट्राइन contraction और uterine inertia you can say. So journal measures क्या आएंगे? Examine to detect disproportion, malpresentation और malposition, क्योंकि ये सारे क्या हैं? causative factor. तो इनको हमने find out करना है कि कहीं वहाँ पे CPD तो नहीं है या malpresentation तो नहीं है या फिर malpositioning तो नहीं है. ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग हम फिर केस को मैनेज करेंगे. देन है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द फर्स्ट स्टेज. ठीक है,
फर्स्ट स्टेज को उसी तरह से मैनेज करना है जैसे कि हम नॉर्मल लेबर को मैनेज करते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मल लेबर की मैनेजमेंट पढ़ी है आपने फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की, वो सेम मैनेजमेंट इसके अंदर आएंगी और पार्टोग्राफ रिकॉर्डिंग मस्ट है। देन एंटीबायोटिक हमने यूज़ करने हैं क्योंकि पेशेंट प्रोलॉन्ग लेबर में जा रहा है और मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो चुकी हैं अगर, ठीक है, तो हम बार बार पर वजाइनल एग्जामिनेशन करके देखते हैं, ठीक है, कि प्रोग्रेस कितना हुआ है लेबर का, तो उससे पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस होंगे, तो इसलिए प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक जो है पेशेंट को हमने स्टार्ट करना है। देन एमनियोटमी वी कैन गो फॉर, अगर मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुई है तो हम क्या करेंगे एमनियोटमी, क्योंकि एमनियोटमी करने से कई बार क्या देखा गया है कि जो दैट इज़ अ मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, राइट, सर्जिकल इंडक्शन ऑफ लेबर, तो उससे जो आप बोल सकते हो कि लेबर का प्रोसेस जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। सो प्रोवाइडिंग दैट वजाइनल डिलीवरी इज एमनेबल, ठीक है। एमनियोटमी उस केस में करेंगे जब पेशेंट फिट है, वजाइनल डिलीवरी के क्राइटेरिया पूरा फुलफिल होता है उस पेशेंट के अंदर, तब हम क्या करेंगे एमनियोटमी। देन द सर्विक्स इज मोर देन 3 सेंटीमीटर डायलेटेशन, ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए एमनियोटमी के लिए, ठीक है, कि सर्विक्स जो है वो 3 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा डायलेटेड है और जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, ठीक है, वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अच्छे से फिट हो रखा है, उसी केस में हम जो है वो एमनियोटमी करेंगे अगर पहले से मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुआ है। देन कंटिन्यूइंग विद द मैनेजमेंट वी विल गिव ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम क्या है, सिंटोसिनॉन, ठीक है। तो सिंटोसिनॉन हमने या ऑक्सीटोसिन 5 यूनिट्स पेशेंट को देना है हमने, ठीक है, और 500, ठीक है, 500 ml ग्लूकोज में देना है, 5% ग्लूकोज में, ठीक है। IV इन्फ्यूजन के साथ हम देंगे और रेट ऑफ इन्फ्यूजन कितना रहेगा इसमें 10 ड्रॉप्स पर मिनट, और फिर ग्रेजुअली उसको हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है, टू गेट अ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रेट ऑफ 3 पर 10 मिनट्स, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसको इंक्रीज करना है, इतना इंक्रीज हम उसको करेंगे, एडजस्ट करेंगे फ्लो रेट को, जिससे कि पेशेंट को हर 10 मिनट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 3 कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो मिनिमम आ रही हैं, ठीक है। सो ऑक्सीटोसिन हमने देना है जिसको हम सिंटोसिनॉन भी बोलते हैं। देन ऑपरेटिव डिलीवरी, ठीक है। ऑपरेटिव डिलीवरी का मतलब क्या है, ऑपरेटिव इंटरफियरेंस, ठीक है, जैसे कि वजाइनल डिलीवरी। सो वजाइनल डिलीवरी अगर आप करवा रहे हो, ठीक है, सारा क्राइटेरिया फिट था पेशेंट में लेकिन फिर भी डिलीवर करने में प्रॉब्लम आ रही है, तब देन वी कैन गो फॉर फोर्सेप्स डिलीवरी और वी कैन ऑप्ट फॉर वैक्यूम डिलीवरी, और अगर बच्चा जो है वो फीटस जो है वो ब्रीच प्रेजेंटेशन में है देन वी आर गोइंग टू डिलीवर द बेबी बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीच एक्सट्रैक्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड इट्स लेवल प्रोवाइडिंग दैट, मतलब कि स्टेशन को ध्यान में रखना है, स्टेशन ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट देखना है, उसके बाद आपने मेथड अप्लाई करने हैं फोर्सेप्स के या फिर वैक्यूम, ठीक है। ज़्यादातर हम फोर्सेप और वैक्यूम तब अप्लाई करते हैं जब स्टेशन ऑफ दिस हेड जो होता है दैट इज़ +3, ठीक है, और अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन में बच्चा है तो हमने ब्रीच एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस से डिलीवर करना है। और वजाइनल ऑपरेटिव डिलीवरी के लिए सर्विक्स जो है वो फुल डायलेट होना चाहिए और वजाइनल डिलीवरी जो है वो पॉसिबल होनी चाहिए, उस मतलब जो वुमेन है वो वजाइनल डिलीवरी के क्राइटेरिया में फिट बैठना चाहिए उसको। देन अदर मेथड क्या है, सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। सिजेरियन सेक्शन हम उनमें करेंगे फॉर दोज वुमेन हु आर नॉट फिटिंग वेल इन द वजाइनल डिलीवरी कैटेगरी, ठीक है, और जिनके अंदर आपने सारे मेथड्स जो हैं वो अप्लाई कर लिए हैं जो ऊपर आपको बताए गए हैं और उनसे बेबी जो है वो डिलीवर नहीं हो रहा है, ठीक है। देन अगर CPD है पेशेंट को तब भी हम सिजेरियन सेक्शन नहीं करते, और अगर फीटल डिस्ट्रेस जो है डेवलप हो गया तो भी हम फिर क्या करेंगे, C-सेक्शन करेंगे, राइट। देन नेक्स्ट आ गया आपका हाइपरटोनिक यूट्राइन इनर्शिया, ठीक है। हाइपरटोनिक यूट्राइन इनर्शिया या फिर आप इसको बोल सकते हैं अनकोऑर्डिनेटेड यूट्राइन एक्शन, ठीक है, अनकोऑर्डिनेटेड यूट्राइन एक्शन हम इसको बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, दिस इज हाइपरटोनिक यूट्राइन एक्शन, ठीक है, नॉट इनर्शिया, राइट, दिस इज हाइपरटोनिक यूट्राइन एक्शन। सो हाइपोटोनिक यूट्राइन एक्शन का अनदर नेम है दैट इज अनकोऑर्डिनेटेड यूट्राइन एक्शन। सो इसके अंदर आपका आता है कॉलिकी यूट्रस और दूसरा आता है हाइपर एक्टिव लोअर सेगमेंट, ठीक है। सो सबसे पहले आएगा कॉलिकी यूट्रस। कॉलिकी यूट्रस क्या है, व्हेन देयर इज इन कोऑर्डिनेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूट्रस इन कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि आपको पता है यूट्रस के 2 पार्ट्स होते हैं, अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट, और अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेबर देयर इज पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, अपर सेगमेंट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिट्रैक्ट करता है, जबकि लोअर सेगमेंट साथ में क्या करेगा, डायलेट करेगा, ठीक है। लोअर सेगमेंट क्या करता है, डायलेट करता है। तो कॉलिकी यूट्रस में क्या होगा, ये जो नॉर्मल मैकेनिज्म है, नॉर्मल पोलैरिटी है यूट्रस की, ये डिस्टर्ब हो जाएगी, देयर विल बी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द अपर एंड द लोअर सेगमेंट, ठीक है।
सो नेक्स्ट है हाइपर एक्टिव लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ठीक है। हाइपर एक्टिव लोअर यूट्राइन सेगमेंट में क्या होता है, फंडल डोमिनेंस आपने पढ़ा होगा नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ लेबर में, फंडल डोमिनेंस इज देयर, ठीक है। मतलब कॉन्ट्रैक्शन जो होती हैं वो कॉर्नियो ऑफ फंडस से जनरेट होती है और नीचे की तरफ को जाती है ना, लोअर यूट्राइन सेगमेंट की तरफ को, तो दैट इज फंडल डोमिनेंस। लेकिन इस केस में हाइपर एक्टिव लोअर यूट्राइन सेगमेंट में क्या होगा, देयर विल बी नो फंडल डोमिनेंस, ठीक है। और डोमिनेंस कहाँ पे होगी, लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर, सो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो अराइज होती है, दैट इज हाइपोटोनिक यूट्राइन एक्शन। सो क्लिनिकल पिक्चर क्या आती है इसकी, लेबर इसके अंदर भी प्रोलॉन्ग्ड होगी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आर इरेगुलर एंड मोर पेनफुल। इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, कभी 2 मिनट के बाद आएंगी, कभी 5 मिनट के बाद आएंगी, ज़्यादा गैप नहीं होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में, और ज़्यादा सिवियरिटी से पेन आएगी, ठीक है, इंटेंसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। देन द पेन इज फेल्ट बिफोर एंड थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्शन, जो पेन होगी दैट विल बी फेल्ट बिफोर एंड थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। इस केस में जो पेन होगी दैट विल बी फेल्ट कॉन्ट्रैक्शन से पहले भी फील होंगी और कॉन्ट्रैक्शन जब हो रही होगी तब भी फील होगी, एंड विद मार्क्ड लो बैक एक ऑफन इन ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, और पेशेंट को बैक एक भी होगी इसके अंदर। देन हाई रेस्टिंग इंट्रा यूट्राइन प्रेशर इन बिटवीन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस डिटेक्टेड बाय टोकोग्राफी, ठीक है। टोकोग्राफी जब हम पेशेंट की करेंगे, ठीक है, तो जब एक कॉन्ट्रैक्शन आई और जो दूसरी कॉन्ट्रैक्शन आई, तो दोनों के बीच का जो गैप होगा दैट इज रेस्टिंग फेज, ठीक है। तो इस रेस्टिंग फेज के अंदर जो यूट्रस के अंदर का प्रेशर होता है वो कम होता है, नॉर्मली 5 to 10 mmHg होता है, बट इस केस में दैट विल बी हाई, ठीक है, 20 mmHg से ज़्यादा होगा रेस्टिंग फेज के अंदर भी प्रेशर। देन देयर विल बी स्लो सर्वाइकल डायलेटेशन, सर्विक्स जो डायलेट नहीं कर पाएगा क्योंकि जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है वो भी इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करता है, राइट, जबकि उसका काम कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं होता, उसका काम होता है डायलेट होना, जिसकी वजह सर्विक्स जो है वो डायलेट नहीं होगा। Then there are chances of premature rupture of membrane and there are chances of fetal and maternal distress. Then journal measures, ठीक है। So journal measures जो हैं कुछ सेम हैं जैसे कि हमने हाइपोटोनिक इनर्शिया में पढ़े हैं, जो हमने पहले पढ़े हैं, जैसे कि मेडिकल मेजर्स है, ठीक है। इस केस में एनालिसिस आपने सोच समझ के देने हैं, सेम नहीं होगा, डिफरेंट है, बट ध्यान देना है पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। पॉइंट्स क्या क्या हैं, एनालिसिस जो है इसके अंदर हमने देने हैं जैसे कि पिथेडेन, क्योंकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, ठीक है। देन एपिडुरल एनाल्जेसिया पेशेंट को हम दे सकते हैं इस केस में, लेकिन ये एनाल्जेसिया जो है हाइपोटोनिक इनर्शिया के अंदर हमने नहीं देने होते, क्योंकि पेशेंट को पहले ही कॉन्ट्रैक्शन कम हो रही है, ऊपर से हम उसको एनाल्जेसिक्स दे देंगे, है ना, सो उससे कंडीशन और वर्स हो सकती है। देन सिजेरियन सेक्शन, ठीक है, सिजेरियन सेक्शन हम उस केस में करते हैं when there is failure of the previous methods, ठीक है। प्रीवियस मेथड कौन से, अब यहाँ पे जो लिखा है एज हाइपोटोनिक इनर्शिया, ठीक है, जो आपने हाइपोटोनिक इनर्शिया में पढ़े हैं फैक्टर्स, ठीक है, जो इंडिकेट करते हैं सी सेक्शन को, तो वो सेम आएंगे जैसे कि फेलियर ऑफ द प्रीवियस मेथड। प्रीवियस मेथड कौन से पढ़े हैं हमने अभी हाइपोटोनिक इनर्शिया में, जैसे कि वैक्यूम, फोर्सेप्स, ठीक है, अप्लाई करें हमने, लेकिन फिर भी बेबी डिलीवर नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, सी सेक्शन करेंगे, या अगर वहाँ पे डिस्प्रपोर्शन है, सीपीडी है, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन है, तो भी सी सेक्शन करेंगे, या फिर फीटल डिस्ट्रेस हो गया, तो ये सारे सी सेक्शन के इंडिकेशन जो है दैट इज सेम एज इन हाइपोटोनिक इनर्शिया, राइट, बिकॉज दिस इज द रिविजन सेशन, और भी बहुत सारे इंडिकेशंस हैं सी सेक्शन के, ठीक है, इस केस में, तो वो आपने अपनी टेक्स्ट बुक को भी रेफर करना है साथ में, और नोट्स जो आपको करवाए गए हैं क्लास में उनको भी ध्यान देना है, राइट। सो आई होप दिस टॉपिक Part 1 abnormal uterine action is clear to all of you, ठीक है, and for Part 2 please wait for the video that I'm going to upload day after tomorrow, right? Thank you so much, and still if you are having any doubts in this revision session, please feel free to ask. Thank you so much.